So rewards, compensation, benefits, different words are used. So we'll see okay, what do we mean by compensation management or reward management. So compensation management means that it's a special discipline of planning and administering everything of financial value that an employer gives to an employee in exchange for their work, and it includes their salary but also benefit bonuses and other rewards. The word is financial value, not cash. We are saying financial value. So in short, whatever an employee gets for the job performance, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे होते हो, आपको जो भी चीज वहां से मिल रही है, in terms of cash, in terms of benefit, in terms of bonuses, in terms of other intangible things, all are your rewards or your compensation. First, we will try to understand the structure and the different types of rewards and compensation. Starting from total reward, this is the main head. Main head is mainly divided into two components: non-financial rewards and compensation, which means financial rewards. Now, first we'll talk about non-financial rewards ताकि एक side हमारी जो है, usually we do not think कि compensation में हमारे ये चीजें आती हैं, but they are really part of the total reward system. Now, what kind of title you are getting in an organization is your reward, because you get to print it on your card with your name and everything. So this is a reward, the kind of title you get. The other privileges that you get within the organization, outside the organization, the contacts that you make while you're in the organization, and the appreciation that you receive from the organization and outside the organization just because you're working in some organization. These are rather intangible things that you cannot really feel, and you do not really feel them as your compensation part or reward part, but it is a part of your total reward system. Then the other side is the compensation side, in which the most understood and the most used system is the base pay system, जिसमें आपके पास सैलरी आ जाती है, जिसमें आपके पास वेजेस आ जाती है. So this is the hard cash that you get, not obviously in form of currency notes, but आपके बैंक में भी जा सकता है. But this is the cash that you get. That is your salary and your wages. Difference इसका salary और wages का I hope हमने पहले भी एक दफा cover किया था. That if you calculate the pay based on a month or a year, it is a salary. मंथ और ईयर की बेस पे कि आपको जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो किस बेस पे आपको पे मिलती है, किस बेस पे. दैट बेस में बी
your monthly salary or your yearly salary for certain duties that you need to perform. बट ये डिपेंड करते हैं मंथ पे या ईयर पे। आपको मिलते कब हैं उसका हम बात नहीं कर रहे, कब आपकी ट्रांजैक्शन होती है आपके अकाउंट में उसकी बात हम नहीं कर रहे। ना हो सकता है आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो ईयरली आपको 12,000 रुपीज पे करेंगे ईयरली और 1,000 रुपीज आपको मंथली मिल जाता हो, बट स्टिल आपका जो बेस है पे की दैट इज योर ईयरली बेस्ड। हो सकता है कि कुछ कंट्रीज में यही सैलरी 1,000 रुपीज पर मंथ पे आ गई और $250 पर वीक मिल जाती हो उनकी, बट इसकी जो सोर्स है दैट इज 1 ईयर, बिकॉज डिसाइड जो हुआ आपका कि किन बेसिस पे आपको सैलरी मिलेगी दैट इज 1 ईयर। अब आपको किस प्रोपोर्शन से कब ट्रांजैक्शन उसकी होती है दैट डजंट मैटर। दिस इज हैपनिंग दैट यू आर बीइंग पेड बेस्ड ऑन अ ईयर और अ मंथ्स वर्क, देन इट इज सैलरी। और भी छोटे छोटे डिफरेंसेस इनमें हैं, बट दिस इज द मेजर डिफरेंस। On the other hand, if the base of deciding your payment is a day, कि कितने दिन आप काम करेंगे तो क्या होगा, और एन आवर पर आवर आपका रेट क्या होगा, और पर वीक आपका रेट क्या होगा, और पर पीस क्या रेट होगा, इसके बारे में हम आगे जाके मजीद बात करेंगे। पर पीस, पर यूनिट, पर सेल, पर समथिंग, अगर ये सारा कुछ है तो दिस विल बी योर वेज, बिकॉज उसकी बेस जो है दैट इज पीस रेट, यूनिट रेट, hourly basis, daily basis or weekly basis. Now, again and again, I'm saying how you are calculating it. It's not how you are getting it, how your bank is getting this amount of money. For example, आपके साथ ये डिसाइड हो सकता है कि डेली आपको 100 रुपीज मिलेगा, 100 रुपीज के हिसाब से आपको पर डे वेज मिलेगी, और आपको 30 दिन बाद 3,000 रुपीज मिल जाता है। नाउ आपको ये ट्रांजैक्शन तो महीने बाद हो रही है, दिस विल नॉट मेक इट अ सैलरी, बिकॉज आपका जो डिसाइडिंग यूनिट था दैट इज 100 रुपीज पर डे, सो इट विल बी नोन एज वेज। सैलरी एंड वेज तो एक बेसिक पे बेस है ही, वो आपको कैश की फॉर्म में, बैंक ट्रांजैक्शन की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में आपको मिल जाती है। फिर नाउ दूसरी तरफ आपके पास आ जाते हैं बेनिफिट्स, एंड देयर कैन बी नंबर ऑफ बेनिफिट्स, बहुत सारे हो सकते हैं, बट लेट्स से आपको इंश्योरेंसेस मिल जाती हैं, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जॉब की कुछ इस तरह की छोटी मोटी और अगर हैं तो ये आपके बेनिफिट्स हैं। एक चीज जरा ध्यान में रखें, इनकी भी फाइनेंशियल वैल्यू है, बट ये आपको कैश नहीं मिलता, आपको पैसा नहीं मिलता। सर्विसेज या जो भी फैसिलिटीज हैं या जो भी बेनिफिट्स हैं वो आप अवेल करते हैं, बट यू डू नॉट गेट डायरेक्टली द मनी। सो इंश्योरेंसेज आपको मिल सकती हैं, आपको पेंशन मिलती है एट द एंड ऑफ द योर जॉब, और अदर सर्विसेज हो सकता है आपको घर शिफ्ट करने के लिए गाड़ी भिजवा देते हों, या आपको
घर रहने के लिए दे देते हों, एजुकेशन का कुछ दे देते हों, reimbursement and many other types of things are possible. But सर पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी सर्विसेज में आएगी? yes, services में आएगी। और सब वो जो मेडिकल इंश्योरेंसेस वगैरह हैं वो भी इसी सर्विसेज में आएंगे कि वो जो वो ये मेडिकल? इंश्योरेंसेज में आएंगे जब आपने ज्वाइन किया उससे पहले, ओके। वो इंश्योरेंसेज में आएंगी। सो ये एक बेनिफिट्स में आ जाता है। अभी बेनिफिट्स में थोड़ी बहुत और हम बात करनी है, अभी हमने ये चीजें आ जाती हैं। देन देर आर अदर थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ कॉम्पनसेशन के प्लान्स होते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग, विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। सीधा सीधा आपसे ये कहते हैं कि जितना प्रॉफिट होगा हम इतने परसेंट उसका एम्प्लॉयज के साथ शेयर करेंगे। स्टॉक ओनरशिप ये यूजुअली सी सूट को देते हैं, जो हायर लेवल के लोग हैं। स्टॉक ओनरशिप के साथ स्टॉक ऑप्शंस होते हैं। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, उनका डिफरेंस भी हम करेंगे। ये है ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड compensations, and they vary from time to time and person to person. ये सबको ऑप्शन नहीं मिलती, एक टाइम पे सबको ऑप्शन नहीं मिलती, और एक टाइम फ्रेम के लिए ऑप्शन नहीं मिलती। सो दीज आर वेरिएबल पेज। वेरिएबल पे पे भी हम मजीद भी बात करेंगे। I'm sorry, मुझे बार बार लोगों को भी साथ एक्सेप्ट करना होता है, तो इसलिए जरा ब्रेक आ जाती है। ओके, सो दूसरी तरफ जो वेरिएबल है वो इंडिविजुअल और ग्रुप बेस्ड है। मोस्टली इंडिविजुअल बेस्ड हम ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, या फिर जब टीम पूरी होती है तो उसकी पीस रेट। पीस रेट क्या है? आप कितने पीसेस बना रहे हैं पर यूनिट प्रोड्यूस्ड सर। पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। आप अगर बेडशीट स्टिच कर रहे हैं तो कह देंगे 11 बेडशीट स्टिच की हैं, 10 रुपए पर बेडशीट आपकी वेज है, इनको 110 रुपए या 120 रुपए जो भी बनते हैं वो दे दें। But this is variable. Why it is variable? Because everybody is going to make different number of units. One-time bonus, we will talk about it. Sometimes it is twice a year. Sometimes in some very few companies, it is 4 times a year. Sometimes it is mostly it is once a year bonus जो है। बट इसमें हर किसी का अपना अपना जो है वो वन टाइम वाला वो भी होता है ना, जैसे जो आपको फर्ज करें कई दफा ऑर्गेनाइजेशंस में बाहर ज्यादा होता है, ज्वाइनिंग बोनस मिल जाता है आपको, तो वो आपको एक ही दफा मिलता है इन योर एंटायर करियर में। हाँ, लेकिन वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज वो सिर्फ उन लोगों को देते हैं जो ऐसी जॉब्स, फॉर एग्जांपल सीईओ को देंगे वो, या वो अभी मैं आगे, बिकॉज इसके बारे में है नहीं अलहदा से, तो मैं भी आपको बता दूं, वो ऐसे बंदे को दिया जाता है या ऐसे बंदे के लिए वो ऑप्शन रखी जाती है कि फॉर एग्जांपल मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं फ्रॉम लास्ट 4 इयर्स। 4 इयर्स से मैं काम कर रहा हूं, और जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं उस कंपनी की जो पॉलिसीज हैं, अभी जो करंटली जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं उस कंपनी की पॉलिसीज में ये है कि 5 इयर्स मुझे जब पूरे होंगे तो लेट्स से मुझे कोई ग्रेजुटी या कोई ऐसी चीज मिलनी है विच इज वर्थ 2 लाख रुपया, 200K वर्थ है उसकी। बट अभी मुझे सिर्फ 4 इयर्स हुए हैं यहाँ काम करते हुए। दूसरी कंपनी मुझे कह रही है आप अभी हमें ज्वाइन कर ले। ठीक है, मैं उनको बताता हूँ कि व्हाट आई एम गोइंग टू लूज। सैलरी तो आप मुझे ज्यादा दे रहे हैं, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा दे रहे हैं, बट दिस इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू लूज। मुझे 5 साल पूरे करने चाहिए थे। तो वो कहते हैं ठीक है, इस तरह करें कि ये जो आप वहां लूज कर रहे हैं ये आप हमसे 180K ले लें।
ज्वाइन करते ही कोई बात नहीं, खैर है, इतना आपने वहां वर्क कर लिया हुआ है। दूसरा ये तरीका होता है कि कई दफा सीईओ को रिटेंशन रखने के लिए उनको कह देते हैं कि आप ज्वाइन कर रहे हैं, एंड इफ यू आर गोइंग टू सर्व हियर फॉर मोर देन 3 years, तो हम आपको ज्वाइनिंग बोनस दे देते हैं, और मदर फॉर्म। बट वो वन टाइम बोनस तो सबको ही मिल रहा होता है। ये जो है परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस जो है वो सबको मिल रहा होता है, और अगर इस तरह का हो तो वो ऑब्वियसली वो फिर हायरिंग के वक्त देख रहे होते हैं। देन सर्टेन टारगेट बेस्ड बोनस, हाँ अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो इसको हम वन टाइम बोनस कह सकते हैं ज्वाइनिंग वाले को, एंड इसको जो है वो आपका टारगेट परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस जो है वो कर सकते हैं। बट दिस वन टाइम कैन बी एट एनी टाइम इन योर टेन्योर। मे बी आपको ये कह दें कि जब 3 साल कंप्लीट करेंगे तब मिलेगा, मे बी ज्वाइनिंग के वक्त दे दें, मे बी, और फॉर एग्जाम्पल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये वन टाइम बोनस जो है दिस इज एट 10 years ऑफ सर्विसेज। 10 साल आपको पूरे होंगे तो एक सर्टेन अमाउंट जो है वो हर लेवल के एम्प्लॉय को मिल जाती है, बट अगेन डिपेंड करता है पॉलिसी क्या है। टारगेट बोनस अगेन डिपेंड करता है, इस पे भी हम जाके आगे बात करेंगे कि किस तरीके से डिटर्मिन किया जाता है, क्या चीज है। एंड देन कमीशन, कमीशन इज यूजुअली इन परसेंटेज फॉर्म, और ये जो है ये आपका पीस रेट फॉर्म में होता है, पर पीस के फॉर्म से। ये सेल्स वगैरह में यूज होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, ये थोड़ा बहुत इनमें फर्क आ जाता है। सो दिस इज योर टोटल रिवॉर्ड और टोटल कॉम्पनसेशन। इसके अलावा बहुत सारी और चीजें जो टोटल रिवॉर्ड एंड टोटल कॉम्पनसेशन में आती हैं, जिसको सर्विसेज में या प्रिविलेजेस में कवर कर लिया गया है। बट लेट्स से आपके कार्ड पे कंपनी का लोगो, आपको अपनी मर्जी का ऑफिस फर्निश करने के लिए अगर कह दिया जाए, आपको अपनी मर्जी के बेनिफिट्स पिक करने को कह दिया जाए, सो बहुत सारी चीजें जो हैं वो और इसमें आ जाती हैं। सो जब भी हम जॉब स्विच कर रहे होते हैं या कुछ वैल्यू कर रहे होते हैं, दूसरी जॉब को वैल्यूएट कर रहे होते हैं, you need to look at the total rewards, not just the salary. Salary is one part of this total reward. सर जी सर, अपॉइंटमेंट जो होती है वो भी रिवॉर्ड में आती है सर? अपॉइंटमेंट, जी, अगर आपकी मर्जी की अपॉइंटमेंट हुई है, अगर मैं आपका क्वेश्चन ठीक समझ रहा हूं तो मैं बता देता हूं, फिर आपने मुझे क्वेश्चन करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपनी में अप्लाई करता हूं और एचआर की नौकरी के लिए अप्लाई करता हूं, क्योंकि मुझे एचआर में काम करना अच्छा लगता है, तो मुझे एचआर की नौकरी ही मिल जाती है, दैट इज पार्ट ऑफ रिवॉर्ड। अब आप बताएं आप कौन सी अपॉइंटमेंट की बात कर रहे थे? बिल्कुल सर, ठीक है। लाइक अगर तो आपको अपनी मर्जी की मिले तो हम उसको रिवार्ड कह सकते हैं, और अगर ना मिले तो वो कंपनसेशन भी हो सकती है। लेट्स सपोज 2 बंदे एक ही कंपनी में हायर हुए हैं और उनको एक बंदे को अपॉइंटमेंट दे दी गई है जिसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस डिफरेंट हैं और दूसरे के डिफरेंट है। अब वो एक बंदा तो थोड़ा सा ज्यादा कंपनसेट हो रहा है एज कम्पेयर टू अदर, तो इसलिए हम मतलब कि एक को तो कह सकते हैं जिसको अपनी मर्जी से मिली है कि वो उसको रिवॉर्ड मिले, और दूसरा वो है वो कंपनसेट किया जा रहा है बस। Is it so, sir? नहीं, एक तो अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि इक्विटी की बात करेंगे, वो तो एक और चीज है, वो मैं भी आपको समझाऊंगा, शायद आप उससे एक 2 बंदों ने अप्लाई किया, सर एक बंदे को एचआर की जॉब मिल गई है, ठीक है, दूसरे बंदे को आप क्या कहना चाह रहे हो? एक को उसकी मर्जी की मिल गई जिसको आप कह रहे हैं कि वो रिवॉर्ड है, एक को नहीं मिली, एक को जस्ट एडजस्ट किया गया बस। एडजस्ट किया गया है, एडजस्ट करने के बाद उसको कोई एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया है? नहीं सर, वो नॉर्मल जो उसकी ड्यूटीज हैं, लाइक कुछ अपॉइंटमेंट ऐसी होती हैं जिसमें आपकी, अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर में बात करूं
तो उसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होती है, उसमें आपको घर की फैसिलिटीज होती हैं और इस तरह की होती हैं। और एक ऐसी अपॉइंटमेंट है जिसपे आप नॉर्मल रहते हैं, आपको अपने टाइम में गाड़ी मिलेगी, अपने टाइम में आपको घर मिलेगा, अपने टाइम में दूसरी फैसिलिटीज मिलेगी। उसकी ये सर्विस लेंथ एक है, उसका रैंक स्ट्रक्चर एक है, उसकी लाइक बाकी चीजें सेम है। बट जब बात आती है फैसिलिटीज की, तो उसके अंदर जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जिसको अपॉइंटमेंट अच्छी मिली है तो वो ही इज रिवॉर्डेड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कह सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे आपको पता है सीएसएस का क्या होता है, सीएसएस में भी अपॉइंटमेंट्स ही होती है ना। जी सर, बिल्कुल सर। किसी की पोस्टल में जी होगी सर, और बिल्कुल किसी की डीएमजी में होगी, किसी की पुलिस में होगी। सर। तो वो कॉम्पनसेशन तो है, बट दैट शुड नॉट बी लुक्ड एट फ्रॉम दिस एंगल, बिकॉज वो मेरिट बेस्ड है साथ। लेकिन सर उसमें भी एक बंदा बलोचिस्तान चला जाता है और एक बंदा लाहौर में है। हाँ ये है कॉम्पनसेशन, बिकॉज आप मर्जी की जगह मिलना है इस कॉम्पनसेशन। यस जी लाइबा। सर मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा कि कैसे अगर दो लोगों ने एक ही जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो अगर दोनों को हायर किया गया है तो एक के लिए वो कॉम्पनसेशन हो जाती है और एक के लिए वो रिवॉर्ड हो जाता है, कैसे सर? नहीं ये नहीं हम कह रहे, सिर्फ फर्क ये कर रहे हैं। अच्छा, इसको मैं जरा सिंपल करके आपको बताता हूँ, लाइबा एंड एवरीबडी। आपने अगर एचआर में डिग्री की है लाइबा, सपोज, एंड आप एचआर में काम करना अच्छा लगता है आपको और आपको काम आता भी है, इजी भी है, इसमें करियर भी बनाना चाहते हो आप, और एचआर की जॉब आपको मिल रही है 40,000 रुपीज की, ठीक है। यस और सर। दूसरी तरफ आपको सेल्स की जॉब मिल रही है, सेल्स की जॉब आपको मिल रही है 50,000 रुपीज की। विच वन यू आर गोइंग टू चूज? सर अगर पसंद पर जाए तो एचआर के लिए, क्योंकि करियर वाइज भी प्रॉफिटेबल होगा लॉन्ग टर्म में, और दूसरी वजह से। सो अगर आप ये 10,000 रुपीज जो छोड़ रहे हो, दैट मीन्स यहाँ आपको कुछ मिल रहा है जिसकी वजह से 10,000 रुपीज आप छोड़ रहे हो। यस सर। सो ये भी कॉम्पनसेशन है कि आपको अपनी मर्जी का काम दे दिया जाए। ये भी कॉम्पनसेशन का पार्ट है, जो आप करना चाहते हैं उस तरह की जॉब आपको दे दी जाए। तो जो ओके भी सर। मजर बात कर रहे थे कि अब टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट्स भी मैटर करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा इस्लामाबाद का रहने वाला है और उसको इस्लामाबाद में जॉब मिलती है और इस्लामाबाद ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो वो उसके लिए कॉम्पनसेशन या रिवॉर्ड या अच्छाई वाली बात है। और एक बंदा इस्लामाबाद का रहने वाला है, उसको कोयटा ट्रांसफर कर दें, बल्कि कहीं कोयटा के आगे गांव किसी में कर दें ट्रांसफर, तो वो भी प्रॉब्लम तो है उसमें। तो टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट की बात कर रहे थे। और सर इसी तरह इसमें से तो लोकेशन और इंटरेस्ट और पैशन भी आ जाएगा ना टोटल कंपनसेशन वाली ब्रैकेट जी में? जी 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 सारा कुछ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदे को आप डेपुटेशन पे भिजवा देते हो कि यूएन जाओ, अमेरिका इतने साल काम कर रहा हो, उसके टोटली पैकेजेस फर्क होते हैं, एक्सपैट्रिएट्स के पैकेजेस फर्क होते हैं। तो वो अपॉइंटमेंट ही है ना, रैंक उसका वही होगा, लेकिन पाकिस्तान वाला कम कॉम्पनसेशन पे होगा और जो डेपुटेशन पे गया है वो ऑब्वियसली ज्यादा कॉम्पनसेशन पे जाएगा। तो ये वो बात आई थिंक करना चाह रहे थे। सर नॉर्मली रिटायरमेंट के नज़दीक ये करते हैं कि आपको अपनी चॉइस का एक होम स्टेशन पे भेज देते हैं कि आप उधर ही अपनी सर्विसेज करें बाकी की और उधर ही रिटायर हो जाएं। बिल्कुल, ये वो एज अ कंपनसेशन जो है वो आपको कर देते हैं। यस, ये भी कॉम्पनसेशन है। एंड आपका जो आखिरी साल जो एलपीआर मिलते हैं वो भी कॉम्पनसेशन है। तो इस तरह की सारी चीजें जो हैं वो कॉम्पनसेशन में ही आती हैं। इनफैक्ट फोर्सेस का तो जो यूनिफॉर्म का पहनना है, दैट इज आल्सो कॉम्पनसेशन, because normal people cannot wear it. The powers they have or the power one person has, दूसरे बंदे के पास नहीं होती। So total reward actually आपने देखना होता है, but usually we focus on here और sometimes maybe here, और कुछ थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं बस, बाकी तरफ हम नहीं जाते। Okay, now for organizations ये दो चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लीगली रिक्वायर्ड बेनिफिट्स
वर्सेस वॉलंटरी बेनिफिट्स, और डिस्क्रिशनरी बेनिफिट्स भी इनको कह रहे होते हैं। देखो, कुछ चीजें जो लेबर लॉज में हैं, लेबर लॉज में या किसी भी गवर्नमेंट के लॉज में कुछ जो एम्प्लॉइज के राइट्स होते हैं या कॉन्स्टिट्यूशंस में जो ह्यूमन बींग्स के राइट्स होते हैं, उसके मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन को कुछ कॉम्पनसेट करना पड़ता है टू द एम्प्लॉइज। फॉर एग्जाम्पल, लेबर लॉज कहते हैं कि आप मिनिमम वेज देंगे किसी भी एम्प्लॉय को, स्किल्ड वर्कर को 17,500 मिनिमम वेज डिफाइन कर दिया। लॉ आपका कहता है कि पीने का साफ पानी अवेलेबल होना चाहिए। लॉ कहता है कि वेंटिलेशन होनी चाहिए। लॉ कहता है बैठने की सर्टन जगह जो है पर पर्सन डिफाइंड होनी चाहिए। लॉ कहता है सर्टन लेवल ऑफ टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। लॉ कहता है ओल्ड एज बेनिफिट फंड जो है वो आपको देना है। लॉ कहता है सोशल सिक्योरिटी देनी है। तो गवर्नमेंट, कुछ चीजें इसके लिए गवर्नमेंट के लिए हैं, कुछ प्राइवेट गवर्नमेंट, दोनों के लिए हैं, कुछ किस तरह है। बट ऐसे बेनिफिट्स जो लॉ कहता है कि आपने अपने एम्प्लॉइज को देने हैं, उनको हम नॉर्मली कह देते हैं लीगली रिक्वायर्ड बेनिफिट्स और लीगली रिक्वायर्ड कॉम्पनसेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक छुट्टी पर वीक जो है दैट इज लीगली रिक्वायर्ड। आपकी जो गैजेटेड हॉलीडेज हैं लीगली रिक्वायर्ड। EOBI का जो आपका है लीगली रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन या ये वो। बट दूसरी तरफ एक कंपनी आपको, लेट्स से यहाँ एक छुट्टी का कहा हुआ है, यहाँ कंपनी आपको 3 छुट्टियां हफ्ते में देती है, सपोज 2 छुट्टियां देती है, तो ये वो अपनी मर्जी से कर रही है। कंपनी अपनी मर्जी से कर रही है, लॉ नहीं कह रहा। इट इज अ गुड थिंग बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द लॉ। लॉ ने कहा टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए टू अ सर्टेन एक्सटेंट के लोग जिंदा रह सकें। इन्होंने आपको एयर कंडीशनर्स और हीटर्स लगा दिए, वॉलंटरी बेनिफिट्स। तो अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, इसमें डिफरेंसेस क्या है। मिनिमम वेज देना लॉ की रिक्वायरमेंट है, लेकिन कंपनी अपने हिसाब से सैलरी सिस्टम में इंक्रीज अगर कर देती है, ज्यादा पैसे देती है, बेहतर पैसे देती है, तो वो एक फ्री बेनिफिट है। ये लॉ डिफाइन करता है, ये कंपनी की पॉलिसी या कंपनी डिफाइन करती है। अगर आप लीगली रिक्वायर्ड बेनिफिट्स किसी को नहीं देते, किसी एम्प्लॉय को, तो यू कैन फेस सम लीगल इश्यूज और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। बट अगर आप किसी को वॉलंटरी बेनिफिट्स नहीं देते तो एटलीस्ट लीगल इश्यूज नहीं हो सकते। ये एक किस्म के हाइजीन फैक्टर्स समझे जाते हैं। इस पे अभी मैं आपको एंड में पूछूंगा कि हाइजीन फैक्टर मोटिवेशनल फैक्टर का क्या डिफरेंस होता है, देन विल टॉक अबाउट इट। इसको अभी छोड़ना। एंड ये मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं, ये आपको कम अज कम लॉ को कंप्लाई करने के लिए लोगों को ये बेनिफिट्स देने पड़ते हैं, कंप्लायंस बेस्ड होते हैं। और ये कंपनी की पॉलिसी को कंप्लाई करने के लिए देने पड़ते हैं। ये लॉ को, गवर्नमेंट को, लीगल बॉडीज को की कंप्लायंस के लिए करने पड़ते हैं। ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट या लॉ डिपेंडेंट भी होते हैं, ये कंपनी पॉलिसी डिपेंडेंट होते हैं। देन लीगली रिक्वायर्ड बेनिफिट्स चेंज विद द चेंज इन लॉज। सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी सही साहब। सर अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था कि वॉलंटरी बेनिफिट्स में आप सर फरमा रहे कि कैन नॉट कॉज लीगल इशू। सर जी मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी कंपनी ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी एंटिटी ने अपना कोई सर्विस रूल्स बनाए हुए हैं जी जी और वो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किए हुए हैं, जी जी और अगर एट सम पॉइंट इन टाइम डाउन द रोड मैनेजमेंट कहती है कि नहीं हम डिप्राइव कर रहे हैं इससे आपको, जी जी, वो सर नहीं कर सकते वो सर, वो और नहीं कर सकते, बिल्कुल करते हैं तो एम्प्लॉय कैन गो इन द लिटिगेशन, दे कैन बिल्कुल। द कोर्ट। हम्म। ऑल्दो द फैक्ट इज कि कंपनी के अपने उन्होंने कहा हुआ है कि भाई अगर जो सा कि फॉर एग्जांपल मैं अपने ZTBL की बात करता हूँ, जी जी वो कहते हैं कि अगर एक बंदा सर्विस रूल 2005 के तहत अगर वो एम्प्लॉय हुआ है और 10 ईयर्स सर्विस होती है, तो अगर वो छोड़ना चाहता है तो हम उसे 35 सैलरीज देंगे या उसकी रिमेनिंग सर्विस के इक्वल उसको बेनिफिट्स देंगे। जी 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 एक पॉइंट पर बैंक ने कह दिया नहीं, ये हम इसको ना नल एंड वाइड कर दिया, ठीक ये चैलेंज हो गया, उसके बाद फिर इनको ना बैंक को रिवर्ट करना पड़ा। ठीक हो गया, होगी बात। करेक्ट जी? जी सर, मेरी कंप्लीट होगी सर, प्लीज सर। अच्छा ओके, इसमें पहला तो मैं आपको बता दूं कि हम इस एंगल से बात कर रहे हैं कि अगर आप अपनी पॉलिसीज में ये बेनिफिट्स नहीं डालते, फॉर एग्जांपल हर देना कंपलसरी नहीं है हर एम्प्लॉय को, और आप नहीं देते, तो एक छोटा एम्प्लॉय उठ के ये नहीं कह सकता कि मुझे भी कार दें। लेकिन अगर हम किसी को फॉर एग्जांपल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं या मिनिमम वेज नहीं देते, चाहे वो जो भी है, वो डायरेक्टली सू कर सकता है हमें। बट अगर हम उसे फॉर एग्जांपल बोनस नहीं देते, वो सू नहीं कर सकता, पॉलिसी वाइज ही बोनस नहीं देते। एक तो ये मसला है कि हम ये कर रहे हैं कि ये कंपनी खुद दे रही होती है बेनिफिट, और ये उसको देने पड़ते हैं बिकॉज गवर्नमेंट या लॉ उसको कह रहा होता है। एक तो ये चीज देख लें। दूसरा, आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, दे कैन ऑल्सो कॉज लीगल इश्यूज, बट ये जो लीगल इशू कॉज करता है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल ब्रीच की वजह से करता है। जो आप बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने जब 61 आपका एक आई थिंक सिस्टम था, और 2002 था या 2005 था सर 5 तो आपने क्या किया कि आपने कुछ लोगों को जब कॉन्ट्रैक्ट किया था, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो आपने उनको सर्टेन चीजें प्रॉमिस की थी कि आपको पेंशन मिलेगी, आपकी नोटिस पीरियड इतना होगा, ब्ला 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 ब्ला। अब आपने एकदम उनको सबको कह दिया कि जी नहीं, ये नहीं होगा, अब ये होगा। ऑल्सो आपको बताइए ना कि आप लोगों ने ऑप्शन भी दी हुई थी उनको। पहले आपने ऑप्शन दी थी कि 61 में रहना है तो ये बेनिफिट्स हैं, अगर सो यू वर ट्राइंग टू क्रिएट अनदर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन दैट कॉन्ट्रैक्ट प्रीवियस वाले पे। सो अगर आपको कोई यहां सू करता है पॉलिसी के मैटर में, तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रीच की वजह से करता है। वो ये नहीं करता कि आप लॉ, गवर्नमेंट का लॉ तोड़ रहे हैं, वो लीगली रिक्वायर्ड बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल आप किसी को कहते हो यूनियन नहीं बनानी, आप यूनियन नहीं बना सकते, लीगली रिक्वायर्ड बेनिफिट। आप CBA का राइट किसी तरीके से भी एम्प्लॉय से नहीं ले सकते, बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो लीगल राइट है उसका। बट आप उसको मे भी मर्जी का ऑफिस ना दें, इस पे वो आपको सू नहीं कर सकता। सो जो बाद में इश्यूज आते हैं वो इसलिए आते हैं कि कंपनी, वो इक्विटी इश्यूज हैं, उसका भी हम पढ़ेंगे। एक तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है, और दूसरा वो इक्विटी के इश्यूज हैं कि आप एक बंदे को और ट्रीट कर रहे हो, दूसरे बंदे को डिफरेंट ट्रीट कर रहे हो, तो वो इश्यूज आ जाते हैं इस वजह से। बट अभी हम ये कह रहे हैं कि अगर ये वो बेनिफिट्स हैं जो कंपनी खुद अपने लोगों को प्रोवाइड करती है, मर्जी से करे या ना करे फर्क नहीं पड़ता, इनिशियली अगर ना करे, ये वो बेनिफिट्स हैं जो उनको लाजमी करने हैं। अगर ये बेनिफिट्स वो नहीं देगी तो कंपनी सील हो सकती है, कंपनी पे लीगल इश्यूज हो सकते हैं। वॉलंटरी बेनिफिट्स वो सारे बेनिफिट्स हैं जो अगर नहीं देती तो कोई इश्यू नहीं है, कंपनी की मर्जी है। राइट सर, राइट। ठीक है।
So हाइजीन फैक्टर गवर्नमेंट डिपेंडेंट हो गया, ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, ये आपने करने ही करने हैं। और ये हो सकता है आप रिटेंशन पॉलिसी के लिए, मोटिवेशन पॉलिसी के लिए कर रहे हो, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है बिकॉज जो लॉ डिसाइड करेगा विद इन दैट पैरामीटर्स आपको ये फॉलो करने ही करने हैं। ये जो है ये आपका ठीक ठाक कंट्रोल है बिकॉज पॉलिसीज आप खुद ही बनाते हो, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपके सीईओज, आपके लोग जो हैं एचआर के लोग, वो पॉलिसीज बना रहे होते हैं। इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोल इन वॉलंटरी बेनिफिट्स, there is almost no control in the legally required benefits. So ये I hope सिर्फ डिफरेंस समझ आ गया कि इसका क्या मतलब है। Right, sir. Okay. Okay, now the bigger issue जो ज्यादा हम सब फेस कर रहे होते हैं, that issue is of equity. Equity issue. अच्छा सॉरी, हाइजीन फैक्टर और ये हमने नहीं डिस्कस किया है। Anybody who has an idea कि हाइजीन फैक्टर्स क्या होते हैं, मोटिवेटर्स क्या होते हैं? ओके सर जी, सर हाइजीन फैक्टर्स वो होते हैं जो बेसिकली आपके जो वर्किंग एनवायरनमेंट को वो कहते हैं सर कंफर्टेबल बनाते हैं, जिससे ठीक। एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी जो है वो इनहेंस होती है सर। ठीक है। और और वो रिक्वायरमेंट जिनके बगैर आप काम करने के लिए राजी ही ना हो, मतलब हाइजीन राजी, फैक्टर्स बेसिकली। ठीक है, गुड। सर बेसिक हेल्थ रिक्वायरमेंट्स पे कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज की और ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग हैं उनकी बेसिक हेल्थ पे जो एक कॉन्सेंट्रेशन है वो। ओके, आप लोगों ने काफी हद तक वो ठीक बताया, इसको एक और एंगल से जरा क्लियर कर लेते हैं। डिससैटिस्फैक्शन एंड सेटिस्फैक्शन, ये दो मैंने अलग-अलग चीजें करती हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपकी सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करते हैं, सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिससैटिस्फैक्शन को खत्म करते हैं। ये 0 पॉइंट है, ये न्यूट्रल पॉइंट है। एट दिस पॉइंट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, you are not dissatisfied at this point, ये वाला। So actually you start from dissatisfaction. If you say you start from dissatisfaction, there are a few things that are going to eliminate the dissatisfaction in a person. Dissatisfaction eliminate हुई, एक लेवल आ गया। इस लेवल पे जहां आप कह रहे होते हो कि यार गुजारा ठीक हो रहा है। Are you happy? No, I'm not happy. Are you sad? No, I'm not sad. So this is that point where you're not dissatisfied and you're also not satisfied. So hygiene factors का काम ये होता है कि hygiene factor dissatisfaction को खत्म करते हैं, motivators satisfaction को increase करते हैं या बंदे को मजीद motivate करते हैं। So legally required benefits are hygiene factors, और वॉलंटरी फर्दर ऐड करते हैं आपकी सेटिस्फैक्शन में या मोटिवेशन में। तो ये मेन डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल सॉरी जी सर, हाइजीन आपने फैक्टर्स जो है वो डिससैटिस्फैक्शन को रिड्यूस करते हैं या खत्म करते हैं जी। और सर सेटिस्फैक्शन का आपने क्या बताया सर? मैंने कहा जो मोटिवेटर्स होते हैं ना, ठीक है सर, वो सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करते हैं। अच्छा एक और बात, गया सर, समझ। हाइजीन फैक्टर्स सेटिस्फाई नहीं करते आपको, ठीक है सर, सही बिल्कुल। बट डिससैटिस्फैक्शन खत्म करते हैं। सही हो गया सर, समझ। थैंक यू। मसलन आपका ऑफिस है तो ऑफिस में चेयर एंड टेबल तो हो कम से कम,
तो चेयर एंड टेबल होगी तो आपको लगेगा यार काम करने के लिए तो जगह है, बिल्कुल सही। बट यू वॉन्ट बी दैट मच हैप्पी और दैट मच मोटिवेटेड। लेकिन आपको पता चले कि बड़ी अच्छी जगह से फर्निश्ड ऑफिस है, जी बिल्कुल तो सही। फिर यू फील सेटिस्फाइड। सो ये इनमें दो मेजर जो है वो फर्क ये होता है। थैंक यू सर। ओके, सो डिटर्मिनिंग द इक्विटी। पहली बात, इक्विटी में थोड़ा सा जो इसका मीनिंग है वो क्लियर कर लें। इक्वालिटी एंड इक्विटी। If I have 100 rupees and I have say 5 people, if I give everybody 20 rupees to each person, ये एक इक्वालिटी होगी, मैंने इक्वल ट्रीटमेंट दी है। But if I have 100 rupees and 5 people, based on what they deserve, based on what is the justice, if I give one person, let's say 0 rupees, the other 20, other 30, other 50, and other 200 or other 10, based on that this is not performing at all, this is the top notch performer, not performing, maybe good performer, an average performer. If I divide my 100 rupees like this based on the equitable or just decision, then this will be known as equity. Equity का simple मतलब ये है justice या फिर जो आप deserve करते हो। So this is mainly the point of equity. And equality and equity are different things. Okay. जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कॉम्पनसेशन का, और अगर आप इक्विटी मेंटेन कर लें तो आपकी परफॉर्मेंस, आपकी कॉम्पनसेशन, आपकी मोटिवेशन, आपकी बहुत सारी चीजें जो हैं ये ठीक हो जाती हैं। नाउ पहले दो इसकी चीजें देख लेते हैं, इंटरनल इक्विटी एंड एक्सटर्नल इक्विटी। लेट्स सपोज हमारे पास ये यूफोन है, इट्स वन कंपनी, एंड एक कंपनी में आपके पास 2 वर्कर्स हैं, हैविंग द सेम knowledge, skill, abilities as a person, they are the same and their job is almost the same, not almost, exactly the same. So let's say हमारे पास मैनेजर HR है और दूसरा भी मैनेजर HR है, and everything is the same in terms of person, they are the same, and in terms of the job they are performing the same job, but the organization is also the same organization. अगर आप इसको 50,000 दे रहे हैं पे, इसको 60 या 70,000 पे दे रहे हैं, आप इंटरनल इक्विटी वायलेट कर रहे हैं, because both of them deserve the same amount of money. 50 के अगर इसको 50 दे रहे हैं फाइन, इसको भी 50 दें, अगर इसको 70 दे रहे हैं इसको भी 70 दें। If you do this, then you are maintaining the internal equity. ये 50-70 कहां से आता है, इस पे भी हम बात करते हैं। सर अगर एक को ज़्यादा एक्सपीरियंस है और एक को कम है तो 50-70 दे सकते हैं ना? फिर दे सकते हैं, फिर इक्विटी ये है कि फिर 50-70 देंगे, बिकॉज एक का ज्यादा एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के भी तो पैसे मिलने चाहिए। बट हमने पहले कहा कि द पीपल आर द सेम, द जॉब्स आर द सेम, ठीक है। तो ना इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशन फर्क है, ना इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिप्शन फर्क है जॉब की। ओके, सो नाउ
आप अपने यूफोन के HR मैनेजर को 70,000 दे रहे हैं और सेम मार्केट में आपको जो जैज का मैनेजर है उसको लेट से 90K मिल रहा है। तकरीबन वही पोजीशन, वही जॉब, वही क्वालिफिकेशन, वही स्किलेबिलिटीज। अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका बाहर वाला बंदा उसी मार्केट में दूसरी कंपनी का सेम टाइप का बंदा ज्यादा पैसे ले रहा है, तो दैट मींस आप एक्सटर्नल इक्विटी को वायलेशन कर रहे हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद लॉ, अभी लॉ के एंगल से हम बात नहीं कर रहे, बट दिस इज व्हाट इज the violation of external equity, because the moment this guy will get an offer from here, he is going to move. प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि ये इक्विटी मेंटेन ना करना can lead to multiple issues. For example, अगर इसको 50 और इसको 70 दे रहे हैं सेम जॉब का, ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जा सकता है, ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जा सकता है। प्रॉब्लम हमारी इतना आप उनको रिवॉर्ड कर रहे हैं। So, ये थोड़ा बहुत जरा वो बना हुआ है, रेंज बनी हुई है, मजीद हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं कि अगर एक बंदा इतना परफॉर्म कर रहा है, ये उसकी परफॉर्मेंस का लेवल है, तो आपको उसको, अगर ये उसका परफॉर्मेंस का लेवल है, सपोज यही कर लेते हैं, बी पॉइंट जो है, इक्विटी ये कहती है कि आप उसको यहां से यहां तक रिवॉर्ड्स पे कर सकते हैं। ये सर फिर से प्लीज, ये नहीं समझ आया सर, मैं फॉलो नहीं किया। कोई मसला नहीं। इसमें एक चीज और भी सर, रिवॉर्ड जो है ये इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसने रखा है और परफॉर्मेंस को बेस किया रिवॉर्ड पे। जी, परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड पे बेस किया जी, ये ठीक हो गया सर। इसको ऐसे देखें, परफॉर्मेंस जा रही है 1, 5, 10, 20, 30, या इसको पॉइंट बेस्ड सिस्टम भी कहते हैं, वो अभी कैलकुलेशन करेंगे तो समझ आएगी। ये है रिवॉर्ड, सपोज 100 का रिवॉर्ड है और ये 50 है और ये से 0 है, ये 1 है। देखें, हम ये कहना चाह रहे हैं जितनी बंदे की परफॉर्मेंस होगी, आप ग्रे जो एरिया है ना, इसको जरा फोकस करना है, बाकी ABC वगैरह छोड़ दें, इसकी टेंशन ना लें। अगर एक बंदे की परफॉर्मेंस जो है इतनी है, फॉर एग्जांपल ये परफॉर्मेंस दे रहा है वो, ये लेवल एग्जैक्टली इस पॉइंट की बात करें जो ये लाइन वाला पॉइंट है, तो परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है, परफॉर्मेंस 25 के आसपास दे रहा है। अब उसको कितने रिवॉर्ड्स देने चाहिए? उसको रिवॉर्ड्स देने चाहिए इसके दरमियान में, सॉरी इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए लेकिन है नहीं। तो आपको जो बंदा 25 परफॉर्म कर रहा है, 26-27 परफॉर्म कर रहा है, आप उसको जो रिवॉर्ड देंगे वो देंगे अराउंड 40 to 80। सर ये ग्रे एरिया कैसे डिफाइन किया सर? ग्रे एरिया अभी हम थोड़ी देर में डिफाइन करेंगे, अभी थोड़ी देर में डिफाइन कर लेंगे, बट ये कुछ थोड़ी समझ आई है कि नहीं? जी सर। अच्छा चलें, इसको भी छोड़ें, एक और मुझे क्वेश्चन बताएं आप, समी साहब एंड अदर पीपल। एक बंदा ये परफॉर्मेंस दे रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी है बुरी है? ये वाली अच्छी है सर। ओके गुड। आप उसको ये रिवॉर्ड दे रहे हैं, रिवॉर्ड अच्छा है बुरा है? बुरा है सर। बुरा है।
परफॉर्मेंस के मुताबिक नहीं है। परफॉर्मेंस के मुताबिक नहीं है। गुड, शाबाश। एक बंदा ये परफॉर्मेंस दे रहा है, उसको ये रिवॉर्ड दे रहे हैं, कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं सर। गड़बड़ कर रहे परफॉर्म हैं, नहीं बिकॉज कर रहा और रिवार्ड मिल रहा है उसको ज्यादा। रिवॉर्ड मिल रहा है। एक्चुअली होना ये चाहिए था कि इस बंदे को इतना रिवॉर्ड मिलना चाहिए था, इसके आसपास, लेकिन आप उसको ज्यादा रिवॉर्ड दे रहे हैं। अब इस बंदे को इतना रिवॉर्ड मिलना चाहिए था, और बड़ी आपने वेरिएशन लेके आनी है, तो ज्यादा से ज्यादा वो, कम से कम ये, कम से कम ये, ज्यादा से ज्यादा ये, रेंज बन गई एक। रेंज बन गई है। अगर आप इस बंदे को इसके दरमियान में कहीं रिवॉर्ड कर रहे हैं, तो फिर आप इक्विटी किसी हद तक मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों सूरतों में इक्विटी मेंटेन नहीं हो रही, ए एंड बी दोनों पोजीशंस में। एक चीज मैं आपको जरा दिखाता हूँ, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाते हैं और फिर वापस आएंगे। ये दो किस्म की हमारे पास जॉब्स होती हैं जो इक्विटी को मेंटेन ना करने की वजह से क्रिएट होती हैं। एक को कहते हैं रेड सर्कल जॉब्स और एक को कहते हैं ग्रीन सर्कल जॉब्स। इसकी जरा थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ें। लेस परफॉर्मेंस, मोर रिवॉर्ड। अगर तो ऐसा काम हो रहा है तो उसको रेड सर्कल जॉब्स कहते हैं। अगर मोर परफॉर्मेंस लेस रिवॉर्ड है तो वो आप ग्रीन सर्कल जॉब्स कह रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। इसका हम जब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कैलकुलेशंस करते हैं तो ये हम डिटरमिन करेंगे कुछ डेटा लेके थोड़ा सा। आप मुझे बताएं कि ये जो सारा एरिया, अगर आपकी इक्विटी लाइन ये ग्रे है, तो all the area below this line, which is this area, all of it, if your jobs are falling somewhere here, it is the green circle jobs. ग्रीन सर्कल जॉब्स। If your jobs are falling somewhere here in this area, all of it, they are रेड सर्कल। red circle jobs. ये जरा प्लीज सोच के देख के मुझे बताएं कि किसको समझ आई है, किसको नहीं समझ आई। दिस इज इंपॉर्टेंट। सर इसमें बहुत सारा एरिया तो ओवरलैप भी है। जो ओवरलैप एरिया है ना इक्विटी वाला, जी जो सर। ग्रे एरिया ही कह रहे हैं ना? जी सर, ग्रे एरिया मतलब वो दोनों के साथ देखिए ना, वो जो ट्रायंगल है वो जहाँ पे वो उनका एरिया कॉमन है सर, उसका क्या होगा सर? कौन से वाला? ये नहीं सर, ग्रे एरिया नहीं, वाइट हाँ। में ही सर। एक वो ए वाला एरिया है जी जी, और फिर एक ये दूसरा ग्रीन वाला है। बी वाला एरिया। इनका भी तो कुछ वो मतलब वो ये सारे का सारा एरिया यहाँ से लेके जितना वाइट एरिया है बिलो द इक्विटी लाइन, ये सारी ग्रीन जॉब्स हैं। ठीक है जी। और जितना अबव द इक्विटी लाइन है वो सारी की सारी रेड जॉब्स हैं, रेड सर्कल जॉब। ठीक हो गया सर। जी, किसको क्लैरिटी नहीं हुई प्लीज देखें और पूछें। क्लियर? यस सर। ओके, सो आपको ये देखना है कि आपको विद इन इक्विटी रहना है। अब इक्विटी, आप क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि इक्विटी खुद ही बड़ी फ्लेक्सिबल है, अच्छी खासी जगह है, बट ये मार्जिन होते हैं थोड़े बहुत आपके पास। इस पे अभी हम जब डिफरेंट वो ब्रॉडबैंड स्ट्रक्चर्स की तरफ जाएंगे तो वहां थोड़ा सा हम बात करेंगे, या किस तरह ये इक्विटी डिफाइन होती है या क्या है, मिनिमम मैक्सिमम कैसे डिफाइन करते हैं। बट
Now, red circle employees indicate you are spending too much on compensation relative to the value of the jobs. देखें वैल्यू जॉब की क्या है, मे बी 10-15 आउट ऑफ 100, पैसे कितने दे रहे हैं 80-90. You're spending too much on these jobs. Red circles employees are those who are paid over the maximum for the range established for their positions. They are paid more than the job is worth to the company. You can also say that ये हो सकता है लाख रुपया बना के दे रहे हो कंपनी को, लेकिन 2 लाख रुपया इनको आप कॉम्पनसेट कर रहे हैं, आपकी नेगेटिव कैश फ्लो में ये जा रहे हैं. ये नेट लॉस में आपको जा रहे हैं लोग, कंपनी को इनका नेट लॉस है, जितना ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उससे ज्यादा ये कंज्यूम कर रहे हैं. ऑन द अदर हैंड, generally green circles have the potential to green circle की वाई नहीं, but green circle means that they are being paid less as compared to the worth of their job, and generally green circles have the potential to cause legal problems. And if green circles employee is a member of protected group, तो obviously वो ज्यादा issue हो जाता है. But this is the punchline. Green circle means danger. Red is just expensive. ये एम्प्लॉई का इतना ज्यादा इशू नहीं होगा मोटिवेशन या बाकी चीजों का जितना इसका होगा. And this can become dangerous. These are the people who are going to switch. These are the people who are going to lower their performance instead of hiring, increasing it. सर मैंने एक सवाल पूछना. जी प्लीज. सर ये जहाँ पे हमारा ए लिखा हुआ है और रेड सर्कल बना हुआ है जी, तो ये इस वाले जो ट्रायंगल में सर अगर ये रेड सर्कल हम आगे ले जाएं सर, इसी लाइन में आगे लेते जाएं तो उसकी परफॉर्मेंस तो बढ़ जाएगी, लेकिन वो फिर भी रेड जोन में ही रहेगा. मतलब जी जी जी, यहाँ अगर फॉर एग्जांपल हम ले जाते हैं, हाँ जी एग्जैक्टली, आगे ले जाएं सर, तो सर फिर क्या हुआ, फिर उसकी परफॉर्मेंस भी ज्यादा है तो उसकी कॉम्पनसेशन भी उसको ज्यादा मिल रही है, रिवॉर्ड भी ज्यादा मिल रहा है. तो यहाँ जी सर इधर आगे आ जाए तो आ गया, अभी भी वो रेड सर्कल ही है, वही ना सर. हाँ जी, लेकिन अभी भी रेड सर्कल. यहाँ आएगा तो सही होएगा. लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि जब वो आगे आ गया, मतलब ये जो दरमियान वाला सर्कल आपने बनाया उसमें आ गया, तो अब तो लेस परफॉर्मेंस ना रही ना, अब तो परफॉर्मेंस भी बढ़ गई. बिल्कुल, लेकिन कॉम्पनसेशन से अभी भी मैच नहीं कर रही. लेकिन इसमें रिवार्ड ज्यादा मिल रहा है ना, परफॉर्मेंस फिर भी कम है. फिर भी कम है एज कम्पेयर टू द रिवॉर्ड ही इज गेटिंग, अभी भी ज्यादा है. इतना मतलब अगर कि अभी ये ए को आगे कर दें तो फिर इसका रिवार्ड तकरीबन 80% तक होना चाहिए था. फिर इसका यहाँ होना चाहिए था, जो भी रिवॉर्ड था मैक्सिमम यहाँ होना चाहिए था, मैक्सिमम. सर नहीं, ये मुझे आप थोड़ा समझाएंगे. नो प्रॉब्लम, दोबारा समझते हैं. तो मुझे भी ओके. आपने ये समझ आ गई आपको कि यहाँ ये रेड सर्कल में आ रहा है, he is performing less, he is getting more, getting paid too much, reward is too high. now let's suppose ये इस सिचुएशन पे आ गया है, ठीक है, इम्प्रूव किया है इसने, इम्प्रूव किया है. सॉरी, ये जो लाइन लग जाती है ना, ये वाली, ये कोई कंप्यूटर का इशू है इसलिए लग जाती है, तो इससे नहीं कंफ्यूज होना. इसको हम इग्नोर करें सर, इग्नोर करें. हाँ, जो भी सडन लाइन लग जाए उसको इग्नोर करें. जी सर, इज इट पॉसिबल कि अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अगर हम नंबरिंग कर लें फिर शायद ठीक हो जाए, लाइक 5, 10, 15, तो ऊपर भी अगर उनका 5 इक्विवेलेंट है फिर मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर है. मैं आपको नंबरिंग पे भी लेके जाता हूँ. ये ले, लेकिन इसमें भी आपको इस तरह ये लाइन पे समझ लें थोड़ा सा ना, फिलहाल इस लाइन को सिर्फ समझ लें ए एंड बी के हिसाब से. ये जॉब की वैल्यू है, ये लेकिन बना उल्टा हुआ है ना, उसी पे चलते हैं, कोई बात नहीं. अच्छा जी, आपने कहा कि यहां तक रेड सर्कल है और आपको समझ आ रही है, ये यहां मूव कर गया. अब ये क्या रेड सर्कल रहा है या नहीं? मैं कह रहा हूं ये रेड सर्कल में ही है.
क्यों? क्योंकि इक्विटी लाइन के मुताबिक बात, इसकी परफॉर्मेंस कितनी हुई है, इसकी परफॉर्मेंस इतनी हुई है, ये परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है ना ये वाला। जी सर। परफॉर्मेंस अब इतनी हो गई है, फाइन गुड, हम ये कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस इसने इंक्रीज की है, बट इस परफॉर्मेंस के मुताबिक इक्विटेबल रिवॉर्ड जो थे वो मैक्सिमम ये मिल सकते हैं, मैक्सिमम ये, लेकिन अभी भी वो इतने रिवॉर्ड ज्यादा ले रहा है, ये अभी भी गैप है उसका। अब या तो आप उसकी सैलरी या रिवॉर्ड्स को उठा के यहां से यहां लेके आए, उस परफॉर्मेंस के मुताबिक कर दें, या फिर उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो यहां से ट्रैक करके कम से कम यहां लेके जाएं। अब वो रेड सर्कल जॉब से निकलेगा। क्वेश्चन करें इस पर प्लीज, और या अपनी कोई एग्जांपल बताएं ताकि उससे आगे चलें। जी समीर साहब। पता नहीं सर, ये देख वैसे तो सिंपल है, लेकिन आई एम नॉट एबल टू सॉर्ट ऑफ गेट इट, मे बी बिकॉज क्योंकि मुझे अभी तक ये इक्विटी लाइन की शायद समझ नहीं आई, इसलिए शायद कंफ्यूजन हो रही है। आई डोंट नो। अच्छा, अगर इक्विटी सिंगल लाइन हो ना, असल में इक्विटी डबल लाइन में चल रही है इसलिए वो कंफ्यूज करती है। इक्विटी हो ना सिंगल लाइन में तो स्टार्ट कर, तो फिर शायद वो ज्यादा बेहतर समझ आ जाए कि ये इक्विटी की लाइन ऐसे बनती है। मिसाल के तौर पे एक यूनिट की हम एक प्लॉट बना लेते हैं। ये एक यूनिट है और पर यूनिट आपका रेट है 1.5 पे, उस तरह हम एक कंपनसेशन पैकेज बना लेते हैं। हाँ, तो अगर उससे आसान हो जाएगा, थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, लेकिन असल में इक्विटी हम उस तरह लिख नहीं सकते ना। एक्सेल की लाइन नहीं, आप सिंगल लाइन पे बता दें उसको, इक्विटी को उसको थोड़ा एक्सपेंड कर देंगे। सिंगल लाइन पे बता देते हैं, चलें सिंगल लाइन पे, लीनियर लाइन पे बना दें, वो आसान हो जाएगा। यहाँ हम सिंगल लाइन ले रहे हैं, और अब आप ग्रे वाली इक्विटी की लाइन है थोड़ी देर के लिए, ग्रे वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं। जी सर। ओके, सो अगर ये लाइन हो हमारे पास, लेट्स सपोज ये सीधी सीधी लाइन है और ये इक्विटी की लाइन है, तो अब मुझे बताएं कि अब ये बंदा इस लाइन से ऊपर जा रहा है। जी सर। इस परफॉर्मेंस पे इन्हीं लाइंस को देख लें, ये जो लाइन, इस परफॉर्मेंस पे इस बंदे को ये सैलरी मिलनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू द इक्विटी लाइन। ये क्लियर हुआ? सर मुझे समझ ही नहीं आ रही। सर इक्विटी का मतलब ये है ना कि जितनी परफॉर्मेंस है रिवार्ड भी उसको उतने ही मिल रहे हैं। बिल्कुल यही मतलब है सर। अगर हम लें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जब अगर ऑफिसेस की बात करें तो हम ये रेड सर्कल वाला गवर्नमेंट सेक्टर को दे सकते हैं, और ग्रीन सर्कल वाला हम लोग चले दे दें प्राइवेट सेक्टर्स को। तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर में एक सेम ऑफिसर उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा, पर उसे अपनी पे टाइम पर मिल जाती है, फैसिलिटीज ज्यादा मिलती हैं प्राइवेट सेक्टर से, और ग्रीन वाला अगर प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट सेक्टर परफॉर्मेंस वाइज एम्प्लॉयज ज्यादा एफर्ट करते हैं पर उन्हें रिवॉर्ड कम मिलता है, पे कम होती है, और बाकी इंश्योरेंसेस वगैरह गाड़ी वगैरह वाला नहीं सीन होता। जी। आप अपने समझने के लिए ठीक है, बट हम ये बात कर रहे हैं कि विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकता है कि इक्विटी लाइन थोड़ी सी डिफरेंट हो, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये सेम ऑर्गेनाइजेशन में। सर हम इसको सिंपल इस तरह कर सकते हैं, लाइक जिस तरह इक्विटी जो ग्रे एरिया है, ये इक्विटी एक पैरामीटर नहीं है कि जिसके ऊपर हम सिंगल लाइन डिफाइन करें। एक्चुअली इक्विटी के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं, तो हमने इसकी एक सीलिंग रखी है, अपर सीलिंग और लोअर सीलिंग। जी असल में जी सर, जो विद इन द सीलिंग रहेगा वो बेसिकली है सर वो, हाँ ऐसे ही है, बात तो यही है, बात तो यही है कि विद इन द सीलिंग रहेगा तो वो ठीक रहेगा। देखो कई दफा हमें रेंजेस थोड़ी बहुत डिफाइन करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें जो हैं वो फर्क हो जाती हैं, उसका हमने आगे जाके डिस्कस करना है।
कि ये देखें, अगर एक्सटर्नल चलेंगे, मैं आपको बताता हूँ, ये सैलरी सर्वे में वैसे आना था। ये आपने डिफरेंट कंपनीज का डेटा लिया, उनके लेट्स सपोज एचआर मैनेजर को कितनी सैलरी मिल रही है। एक को 2500, 2000, 3000, 2800, 2200 सैलरी मिल रही है लोगों को। ये कम एक्सटर्नल, ये लोगों को मार्केट में वैल्यू है एचआर मैनेजर की। ये क्या है, एवरेज ले ली हमने इनकी, मिनिमम 2000 मिल रही है, मैक्सिमम 3000 मिल रही है। दैट मीन्स 2000 से 3000 के दरमियान अगर आप किसी को एचआर मैनेजर को सैलरी देते हैं तो वो ठीक रहेगा। राइट सर। अब ये 2000 से 3000 के दरमियान एक्चुअली हमने डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, ये सेफ प्लेस है इक्विटी के लिए, जो ग्रे एरिया? ग्रे एरिया इक्विटी बड़ा सारा इसमें लिखा हुआ है ना, अगर इसके दरमियान में है तो इक्विटी है, कोई इशू नहीं। एक्सक्यूज सर, जी सर आपने बड़ा सिंपली समझा तो दिया सर, आप इसमें वो है कंफ्यूजन मुझे समझ नहीं आ रही कि बड़ा आपने क्लियरली बताया कि जो ए है जी, पर्सन ए है वो कम परफॉर्म करके ज्यादा रिवॉर्ड ले रहा है। बिल्कुल, वो जो सा परफॉर्मेंस की कम है, और दूसरा जो ग्रीन सर्कल में वो ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, उसकी सैलरी कम है और वो खतरा हो सकता है लीगली। तो ये आप वही जो कंपैरिजन आपने बताया था लीगल का और जो वॉलंटियर का, जी उससे भी थोड़ी रिजर्वनेस ट्राइंग टू कन्वे इसके भाई जो बंदा कम काम कर रहा है और ज्यादा रिवार्ड कर रहा है वो भी जो सा के प्रॉब्लम में है, और जो बंदा कम ज्यादा काम करके कम रिवार्ड ले रहा है वो भी जो सा के गलत है। जी, वो दोनों गलत है, बिल्कुल ऐसे ही है। एग्जैक्टली सिंपल। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि हमें ये चीज हर बंदे को समझ आ जाए तो अच्छी बात है। जी, बैक टू समीर साहब एंड वन अदर स्टूडेंट। ठीक है सर, अगर हम इसको आगे जरा सा अगर करते हैं सर, मे बी वो बेहतर हो जाएगा सर। आई गेट द कॉन्सेप्ट क्लियर है सर। वो ये डायग्राम प्रॉब्ली थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया सर। कॉन्सेप्ट समझ आ गया। एक्चुअली इन ऑर्डर फॉर ऑल द एम्प्लॉइज टू बी विद इन द इक्विटी रेंज, people should fall in the gray area. They are here, it's a problem. If they are here, it's a problem. ठीक है, सो ये थोड़ा सा, हाँ, इसकी परफॉर्मेंस, सॉरी लास्ट में कोशिश करता हूँ लास्ट टाइम, नहीं तो हम दोबारा इसको कभी डिस्कस कर लेंगे। अगर ये बंदा यहाँ भी आ गया है तो बेहतर हो गया है, इसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई है, लेकिन अभी भी इतने रिवॉर्ड्स डिजर्व नहीं कर रहा। अगर यहाँ आ गया है तो थोड़ा सा और सेफ जोन में आ गया, लेकिन एक्चुअली अगर यहाँ आ गया है कि परफॉर्मेंस और इसने इंक्रीज कर ली है तो फिर ये सही है। ग्रे एरिया में आया है तो नाउ दिस इज व्हाट ही डिजर्व्स, इसमें अब कोई इशू नहीं रहा। नाउ ही इज परफॉर्मिंग वेल टू गेट वेल, फर्स्ट ही वाज परफॉर्मिंग लेस टू गेट अ लॉट। इसी तरह इसको अगर आप उठा के इधर ले जाते हैं तो फिर ये ठीक है, now he is fine. But anything in the lower area will create green jobs, green circle jobs. Anything above this area will create red circle jobs. So these are two dangerous areas. This is fine. All of this gray area is fine. मजीद इसको देखते हैं, नहीं तो we'll come back अगर नहीं समझ आती तो। इक्विटी का आई गेस सबको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि इक्विटी का एक्चुअली मकसद क्या है। These white areas are unwatered areas. Okay, then इसको अभी करते हैं, फिर वापस आएंगे इस पे। Now, what are the factors that help us determining the compensation or rewards? किन किन फैक्टर्स पे हम ये कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि कौन कितनी पे डिजर्व करता है?
There can be many other factors. ऐसा नहीं है कि यही हैं factors, but these are the most common factors. Starting from the responsibilities. This is an important area. Qualification of the person. ये माहीन जो आप बात कर रहे थे, जी सर, स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस, ठीक है। अगर एक हॉस्पिटल है जिसका नाम ही फॉर एग्जांपल कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है सपोज, तो उनके लिए कार्डियोलॉजी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर और लिवर का स्पेशलिस्ट डॉक्टर में भी थोड़ी डिफरेंट वैल्यू रखते हों इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस। जैसे आपने कहा कि आपकी कंपनी जो है फाइनेंस वाले लोगों को इफ दे वैल्यू मोर मे बी, या जियोलॉजिस्ट का आपने जो बताया दैट इज काउंटेड हियर, ओके, बिकॉज ऑयल एंड गैस है ना, ड्रिलिंग, तो दैट मींस जियोलॉजिस्ट, अर्थ साइंटिस्ट, ये सारे उनको चाहिए। दैट इज देयर स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस, दैट इज व्हाई दे गिव देम अ लिटिल मोर वैल्यू। सर जी, एयरपोर्ट पे जो पायलट की टूर होती है वो काउंटेड ही कभी भी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस, ओके, तो उसके लिए उनको आप पॉइंट देते हैं, बट अगेन देयर हैज टू बी सम क्राइटेरिया, ठीक है। वो अभी हम क्राइटेरिया पे आगे जाके हम बात करते हैं। ओके, देन परफॉर्मेंस उस बंदे की क्या है, ये भी इम्पैक्ट कर रही होती है। प्रीवियस परफॉर्मेंस क्या है और आगे एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस क्या है, ये भी चीजें इम्पैक्ट कर रही होंगी। उसकी सैलरी कितनी होगी, मार्केट में कितने पैसे मिल रहे हैं, ये भी इम्पैक्ट करते हैं। ये भी मार्केट प्राइस हम डिटरमिन करेंगे कुछ टाइम में। कॉस्ट ऑफ लिविंग का आइडिया है सबको? कॉस्ट ऑफ लिविंग कितने पैसे में आपका, ओके, कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब है कितने पैसे में आपका गुजारा होता है। बहुत सारी, बल्कि तकरीबन सारी ऑर्गेनाइजेशंस में कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीमेंट होता है, विच मींस कि पिछले साल आपके जितने खर्चे थे इन्फ्लेशन की वजह से, कितने खर्चे इस साल बढ़ गए हैं, एक तरीका। दूसरा तरीका ये भी होता है कि लेट सपोज इफ यू आर इन इस्लामाबाद, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज डिफरेंट, if you're in Lahore, cost of living is different, if you're in some suburb area, cost of living is different. Simple method, एक आपको 10 मरले का घर इस्लामाबाद में जो मिलता है वो आपको हो सकता है कि 50 to 1 लाख में रेंट पे मिलता हो, एक पोर्शन में भी। और कई जगह ऐसी हैं पाकिस्तान में जहां 10 कनाल की जगह या कनाल 1.5 का घर आपको शायद 20 में मिल जाता हो, 20,000 में, मे बी नॉट, बट स्टिल ऐसे बता रहा हूँ कि देयर आर डिफरेंसेस। किसी जगह पे आपको 80 रुपीज पर केजी मिल्क मिलता होगा और किसी जगह पे 150 भी सही नहीं मिलता। कहीं आपको गाड़ी के बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं है और आपका 50,000 का या 30,000 का फ्यूल लगता है और कहीं गाड़ी की जरूरत नहीं है। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो लोकेशन बेस्ड भी हो सकती है, टाइम बेस्ड भी हो सकती है, ये चीजें भी मैटर करती हैं और आप इनको देख के कॉम्पनसेशन बनाते हैं। सिविल स्टेटस, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, डिपेंडेंट कितने हैं, पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट है, बच्चे आप पे डिपेंडेंट है, स्पाउस आप पे डिपेंडेंट है, या आप सिंगल हैं या क्या है। सो सिविल स्टेटस आल्सो कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स योर, बहुत सारे लोगों ने आर्म फोर्सेस में, आई थिंक कोई बंदा मुझे, आप 2-3 लोग हमारे पास हैं वो हेल्प करेंगे, कि जब आप सिंगल होते हैं तो यू हैव स्लाइटली डिफरेंट फैसिलिटीज, बट वंस यू आर मैरिड यू हैव डिफरेंट फैसिलिटीज। जी फादर एंड मदर कैन हेल्प अस। सर ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। तो सिंगल में लाइक ये होता है कि आपकी अकोमोडेशन नहीं होती है, वो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड होती है, फ्री होती है, बट वंस यू गेट मैरिड आपके कुछ स्पेशल अलाउंसेस होते हैं और घर की फैसिलिटीज होती हैं, तो वो उसके लिए होती हैं। इवन के जब आपकी पोस्टिंग वगैरह प्लान होती है तो वो भी आपके नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स और उसके हिसाब से आपके डिपेंडेंट के हिसाब से सारी कैलकुलेशंस होती हैं। बिल्कुल सही। सो सिविल स्टेटस इज आल्सो a factor which determines the compensation.
कंपनी की सक्सेस, ये जब प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह करते हैं या कंपनी ने पिछले साल कितना गेन किया उस हिसाब से बोनसेस और वो चीजें मिल रही होती हैं आपको। एंड देन योर टेन्योर, जो एक्सपीरियंस बेस्ड है। टेन्योर मींस आपका उसी कंपनी में कितना टाइम हो गया। ऑब्वियसली इंक्रीमेंट्स लगते रहते हैं या कोई स्पेशल अलाउंसेस होते हैं जो कुछ साल के बाद मिलते हैं, या कुछ स्पेशल बेनिफिट्स होते हैं जो सर्टेन ईयर्स के बाद मिलते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स जो डिटरमिन करते हैं कि आपकी कॉम्पनसेशन या रिवॉर्ड्स कितने होने चाहिए। नाउ ये हमने अब चीजें थोड़ी सी देखते हैं। जॉब एनालिसिस में एक्चुअली आप क्या क्या कर रहे होते हैं, आप जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन तो बना ही रहे होते हैं, बट सैलरी साइड और जो कॉम्पनसेशन साइड है उसमें हम जॉब एनालिसिस कैसे कर रहे होते हैं। सो हम जॉब इवैल्यूएशन करते हैं, जो भी हम नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे, विच मींस कि किस जॉब की कितनी वर्थ है। सिंपल, व्हाई डू वी पे आवर सीईओ 5 लाख रुपीस एंड आवर ऑर्डरली 20,000 rupees? Why do we pay our middle manager 1 लाख रुपया and our senior manager 2 लाख रुपया? ये सारी justification job evaluation में होती है, जो अभी हम next slide पे करेंगे। Now, in order to do this, how much you need to pay to the other people and maintain the equity? आप पे surveys करते हैं। पे surveys भी अभी हम उसके बाद करेंगे कि सिंपली आप डेटा कलेक्ट करते हैं डिफरेंट जॉब्स का, उनको मार्केट में कितने पैसे मिल रहे हैं, एंड देन डिटरमिन करते हैं कि कितने पैसे आपको देने चाहिए, एंड देन उसकी बेस पे आपका जो है पे स्ट्रक्चर बनता है, पे पॉलिसी। पे सर्वे में अक्सर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस विलिंग भी नहीं होती ना अपने डेटा देने के लिए। जी वो तो है, लेकिन जितने का डेटा आपको मिल जाए उतने से आप आराम से कर सकते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा ये इशू है, अदरवाइज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें ये ऑलरेडी सर्वेज सेल हो रहे होते हैं हर साल। जो कंसल्टेंट्स हैं वो आपको सर्वे सेल कर रहे होते हैं। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका गवर्नमेंट ने खुद एस्टैब्लिश किए होते हैं कि ये सर्विस हैं, ये इक्विटी मेंटेन करने के लिए ये स्ट्रक्चर आपको बनाना चाहिए। सो कुछ गवर्नमेंट प्रोवाइडेड चीजें भी होती हैं। ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग हम बात कर रहे थे, ये मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये जो इंग्लैंड में जितना भी यूके है वो हर साल अपनी एक फूड बास्केट के नाम से कुछ चीज निकालता है कि इस दफा एक बंदे का रहने का जो खर्चा है एक महीने का, से वो कहते थे कि $50 पर मंथ पर पर्सन मिनिमम नीड्स का खर्चा है उसका, ब्रेड मिल्क एंड एवरीथिंग। तो गवर्नमेंट्स और जो बाकी जो कंसल्टेंट्स हैं वो बहुत हेल्प करते हैं इन चीजों में कंपनीज की। एंड देन यू डिसाइड कि आपने इंडिविजुअल पे देनी है और जॉब अपॉइंटमेंट वगैरह कैसे करनी है, देन आप इम्प्लीमेंट करते हो। सो मेनली हमारा जो होगा वो जॉब इवैल्यूएशन एंड पे सर्विस के बारे में हमने नेक्स्ट उस पर बात करनी है। उससे थोड़ा सा आपको इक्विटी की भी क्लैरिटी आती रहेगी। सर पे स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना हमने? पढ़ना है वो भी पढ़ेंगे। ओके। सो ये हेज सिस्टम है जो एक्चुअली वन ऑफ द सिस्टम्स जो आपको हेल्प करता है कि आप कैसे जॉब को इवैल्यूएशन करते हैं। थ्री मेजर एरियाज: नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अकाउंटेबिलिटी। मैंने बताया बहुत सारे और सिस्टम्स हैं, बट मोर और लेस इसी तरह पॉइंट्स चल रहे होते हैं। द नॉलेज, फंक्शनल एक्सपर्टीज कितनी है, ये किसी एक जॉब के लिए हम कर रहे हैं। मैनेजरियल स्किल्स कितनी रिक्वायर्ड है, ह्यूमन रिलेशंस कितनी स्किल्स रिक्वायर्ड, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड चैलेंजिंग जो है चीज, उसमें कितना चैलेंजिंग जॉब है और कितना एनवायरमेंटली वो हैजर्डस या प्रॉब्लम सॉल्विंग में रिक्वायर्ड है। अकाउंटेबिलिटी, फ्रीडम टू एक्ट कितना है, इम्पैक्ट ऑन एंड रिजल्ट्स कितना है, उनका मैग्नीट्यूड कितना है।
हमें कितना रिक्वायर्ड है इन अ पर्टिकुलर जॉब, दिस इज व्हाट वी रिक्वायर. लेट्स से इट्स CEO's जॉब. ठीक है, हम बाकी एक ही जॉब के बारे में कर रहे हैं कि हमें फंक्शनल एक्सपर्टीज उसकी 8 चाहिए, ये 7 चाहिए, ये 3 चाहिए, और यहाँ इतने इतने यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन उसकी हमें चाहिए. और उस बंदे के पास है कितनी. अब देखो, ऐसा नहीं होता कि आपको जो बंदा एम्प्लॉय मिलेगा वो एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा होगा, ऐसे नहीं होता. आपको थोड़ा बहुत किसी ना किसी स्किल पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कहीं कुछ ज्यादा कहीं कुछ कम मिल रहा होता है. सो सिंपल मेथड इज, आपने फंक्शनल एक्सपर्टीज देखी एक बंदे की और आपको इवैल्यूएशन की आपने और 7 आपको मिली. मैनेजरियल स्किल्स आपको 8 मिल गई, और यहाँ आपको ह्यूमन रिलेशन 3 मिल गई. एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको मिल गई लेट्स से 7, यहाँ आपको मैच मिल गया 5. फ्रीडम टू एक्ट कितना है उसमें हमने उसको 8 कर दिया. इम्पैक्ट ऑन एंड रिजल्ट्स उसकी जॉब का वो 4 है. एंड जो टोटल उसका मैग्नीट्यूड है वो कुछ आप ऐड कर लें. जो आपके ये टोटल पॉइंट्स बनेंगे इनका टोटल करके विच इज 18, 19, 20, 25, 30, 38, 40, 44, ये आपके 44 पॉइंट्स बने हैं. तो इस जॉब को या इस बंदे को आप 44 पॉइंट के हिसाब से पैसे पे करोगे. यू कैन इंक्लूड नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स, इनमें से कुछ भी, क्योंकि हमने सिंपल जो है ना वो फैक्टर्स ले लिए हैं. 44 पॉइंट्स जब आप हैं, बैक एंड पे आपने ये किया हुआ है कि एक पॉइंट कुछ वर्थ करता है. तो हम ग्रेडिंग वाला आ गया है. एक मिनट. ओके, आई थिंक वो इसमें थोड़ा सा इंक्लूड होने वाला है. बट ये जो एक पॉइंट है, ये 1 पॉइंट लेट्स से ये 100 रुपीज का एक पॉइंट है. 100 रुपीज कंपनसेशन का ये एक पॉइंट है. जितने पॉइंट इस बंदे के होंगे, एक तो वो इनसे मिलते जुलते होने चाहिए. आपको जितने रिक्वायर्ड थे, रिक्वायर्ड कितने थे? 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 38, 42. 42 आपको चाहिए थे. ये 2 हमने एक्स्ट्रा इधर लगा दिए, और यहाँ भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चाहिए था. 42 सपोज चाहिए थे, और 44 जो है वो आपको मिल गए हैं. आप इसको हायर तो कर लेंगे, बट इस 44 का मतलब ये है कि 100 रुपीज का आपका एक पॉइंट है. इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई करके इसकी जो जॉब वर्थ है वो आप 4400 लगा सकते हैं. अगर यही 1000 का पॉइंट होता तो आप उसको 44,000 कर सकते थे. डिपेंड करता है कि आपने बैक एंड पे अपना पॉइंट्स का सिस्टम क्या बनाया हुआ है, कितने का एक पॉइंट रखा हुआ है, या एक पॉइंट कितने से कितनी रेंज का हो सकता है. इस तरीके से आप जॉब इवैल्यूएशंस कर लेते हैं कि कौन सी जॉब कितने पैसे जो है वो डिजर्व करती है. इसी जगह पे अगर हम रिक्वायर्ड कुछ डिफरेंट हो और इसको किसी और जॉब के लिए कर रहे हो, जिसमें ये हम कंसिडर फिलहाल नहीं कर रहे, बट जो भी है आपको मिल जाता है. यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 2, 1,
मे बी 002 सपोज अगर ये है, ये जॉब जो है 1 2 3 4 5 10 15 इसकी वर्थ 15 है, जो पॉइंट 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1000 रुपीज, 15,000 रुपीज इसकी वर्थ बन जाएगी। दिस इज द सिंपल वे ऑफ डिटर्मिनिंग आप किस जॉब को कितना पैसा दे रहे होंगे। जी कुछ थोड़ी बहुत समझ आई है? जी सर। यस सर। जो वैल्यूएटेड 15,000 है वो जॉब वर्थ है, और जो रिक्वायर्ड जो पॉइंट्स हैं वो क्या होगा, उसको उस टर्म को क्या कहेंगे हम? उस टर्म को एक्चुअली ये कहेंगे कि ये आपका एक्चुअली जॉब स्पेसिफिकेशन से आता है। ये जो है ना सर, सीईओ की स्पेसिफिकेशन में वो कह रहा है कि ह्यूमन रिलेशन लेट्स से ही रिक्वायर्ड है 10 में से, इसकी मैक्सिमम वर्थ 3 है, समझ लें। यहाँ 3 पे बंदा हो तो आप हायर कर सकते हैं उसको। ये 7 चाहिए, ये आपको 8 चाहिए, ये 5 चाहिए, तो इसकी बेस पे आगे आप देखते हैं कि कितनी उस बंदे में प्रेजेंट है। सर बिल्कुल ठीक, लेकिन सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स लेट्स सपोज 44 आ गए हैं जी, तो वैल्यूएटेड आए हैं 45, तो 45 को तो हम कह देंगे कि ये जॉब वर्थ है, बट वो जो 44 पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स की टर्म क्या है? लाइक सर ये पूछ रहा हूँ। वो जॉब स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स है। जॉब स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट, राइट सर? हाँ, जॉब स्पेसिफिकेशन होता है आपकी नॉलेज स्किल एबिलिटीज या जो भी आपने फैक्टर्स डिटरमिन किए हैं कि उस बंदे में क्या चीजें होनी चाहिए और वो कितने लेवल की होनी चाहिए, वो ये डिटरमिन कर रही है। सर ये जो आपने लास्ट पे उसको मल्टीप्लाई किया था 100 into 44 देन 1500 समथिंग आया था, वो अगेन कहिए। वो अभी मैंने इसको आपको सिंपल करवाया, वैसे इसको वेटेड मेथड से भी करते हैं, वो आगे एक चीज है उसमें जाके करेंगे। ये मैंने ये बताया कि आपके पॉइंट बन गए 44, इस जॉब के पॉइंट बन गए 44। ये जॉब कितने पॉइंट्स की है? 44 पॉइंट्स की। ओके, 44 पॉइंट्स के जॉब के कितने पैसे होंगे? तो हमने कहा कि हमारी पॉलिसीज में या हमारे बैक एंड पे जो प्रोसीजर है, कैलकुलेशन है, उसमें हमने कह दिया है कि एक पॉइंट जो है वो 1000 रुपीज का है। 44 पॉइंट्स हैं इस जॉब के, अगर फॉर एग्जांपल या इस बंदे के, तो हमें उसको 44,000 रुपीज देना पड़ेगा। इस तरह हम उसकी कॉम्पनसेशन डिटरमिन कर लेंगे। राइट सर। सो एक ये आपके पास मेथड आ जाता है, दूसरा आपके पास आ जाता है सैलरी एंड बेनिफिट्स सर्वे। इसको मैंने यहाँ सिंपल बिल्कुल रखा हुआ है कि आप एक्सटर्नल इक्विटी को देखने के लिए या ये देखने के लिए कि लोगों को किस बंदे को कितने पैसे आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन मिल रहे हैं। जरा एक मिनट, बल्कि ये कर लेते हैं इसके साथ, फिर उसको अटैच करके आपको बताता हूँ। ये वही है, उसी का आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। दो डिफरेंसेस पहले कर लें। डिफरेंसेस ये हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जॉब्स when you want to evaluate jobs or when you want to see the external equity. Benchmark jobs, non-benchmark jobs. Now benchmark jobs, because हमने सर्वे करना है, सर्वे का मतलब है डेटा कलेक्ट करना है। Benchmark jobs are the jobs for which data is readily available at another company with similar duties and similar requirements. Data is available. Non-benchmark jobs are the jobs which are not present in other companies. Exactly उस तरह की jobs present नहीं है, data not available. इसका data available, data not available. Different. सिर्फ आपकी कंपनी की कुछ स्पेसिफिक जॉब है,
फॉर एग्जाम्पल एक जो गार्ड है वो कितनी सैलरी लेता है और उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, वेरी करेगा। ये हम नहीं कह रहे कि वेरी नहीं करेगा, वेरी करेगा, बट क्या हमें डेटा मिल जाएगा इजीली? जी सर। आराम से मिल जाएगा, बिकॉज हर कंपनी में गार्ड का तकरीबन मोर और लेस वही काम है, विद स्लाइटली डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर यूनिवर्सिटी का है तो उसने बच्चों के कार्ड चेक करने हैं, और अगर बैंक का है तो उसने मे बी ये चेक करना है कि ऐसी गलत वो ना हो चीज। बाकी दोनों ने जो है वो गार्ड का ही काम करना है। सो इजीली हमें जो है वो डेटा मिल सकता है इन जॉब्स का। तो जब डेटा इजीली हमें मिल जाता है, जिन जॉब्स का डेटा मिल सकता है, वो जॉब्स सारी जो हैं वो हमारी बेंचमार्क जॉब्स हैं, और जिनका डेटा नहीं मिलता वो नॉन बेंचमार्क जॉब्स हैं, जो हमारी कंपनी के लिए कोई स्पेसिफिक जॉब्स हैं। तो आपके सर्वेज होते हैं वो विद सर्वेज या सर्वेज करने के लिए यू ओनली गो फॉर बेंचमार्क जॉब्स। नॉन बेंचमार्क जॉब्स के लिए फिर क्वालिटेटिव टेक्निक्स लगाई जाती हैं, फिर वो आपको दोबारा उसको इसी मेथड पे रिलाय करना पड़ता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आप देखते हुए करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपकी कई दफा नॉन बेंचमार्क जॉब्स जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बेंचमार्क जॉब्स बन जाती हैं। जिस तरह आज से 15 साल पहले डिजिटल मार्केटर, इट वाज अ काइंड ऑफ नॉन बेंचमार्क जॉब। आपको नहीं पता था कि ये बंदे को ज्यादा पैसे देने हैं कम देने हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता इट हैज बिकम अ बेंचमार्क जॉब। अब बहुत सारे लोगों ने हायर किए हुए हैं और लोग उनको पैसे वैसे दे रहे हैं। सो सर्वे जो है उसमें आप क्या करते हैं, यू गो टू डिफरेंट कंपनीज विद इन द सेम मार्केट। ABCDE कंपनी के पास आप गए और आपने किसी एक पोस्ट के लिए उनसे कहा कि आप कितनी सैलरी देते हैं इस पोस्ट वाले बंदे को। उसने कहा 2500, एक ने कहा 2000, एक ने कहा 3000, एक ने 2800, एक ने 2200। आपने इन सबको प्लस किया, डिवाइडेड बाय 5 किया, this plus this plus this plus this plus this divided by 5, and the average pay is 25. But at the same time, you also got these 2 points. Minimum salary in industry is 2000 for this post. Maximum salary is 3000. So you have the minimum pay, minimum point, maximum pay, maximum point, and you have somewhere in between point, the average point. So equity, जब आपने external equity define करनी है तो आपने एक्चुअली यहां ये काम किया, मिनिमम जो मिल रही है वो ये है और जो मैक्सिमम मिल रही है वो ये है। दैट इज व्हाई इक्विटी इज सम एरिया, इट इज नॉट वन थिन लाइन, बट ये आपकी इस एवरेज से ही निकलती है जो आपकी 2500 है। सो ये आपका 2500 की लाइन है, ये आपकी 2000 की लाइन है और ये आपकी 3000 का पॉइंट है। तो मिनिमम भी आप इतने पॉइंट्स वाले बंदे को या इतनी परफॉर्मेंस वाले बंदे को पैसे देते हैं तो मिनिमम आपको 2000 देना पड़ेगा। मैक्सिमम देते हैं तो 3000 देते हैं, बट 25 के आसपास देते हैं तो आप मेंटेन कर रहे हैं, बिकॉज सबसे ज्यादा ये पैसा मिल रहा है, सबसे कम ये मिल रहा है। इफ यू आर समवेयर हियर यू आर फाइन। ये मार्केट लाइन भी इसको कहते हैं। यहां तो हम इक्विटी के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं, एक्चुअली ये मार्केट लाइन बना देती है, एवरेज सैलरीज इन द मार्केट। ये सारा डेटा इकट्ठा किया हुआ है, कुछ इतने पैसे दे रहा है, कुछ इतने पैसे दे रहा है, कुछ इतने पैसे दे रहा है। ये मिनिमम है आपके पास, मे बी ये आपके पास मैक्सिमम है। तो ये रिग्रेशन लाइन आपकी जो है वो इस तरीके से आ जाएगी, जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने
कितने, इसके आसपास आप पैसे दे सकते हैं, इसके आसपास पैसे दे रहे हैं तो ये आपकी एक किस्म की इक्विटी लाइन बन जाएगी।